topic. You have to learn and understand this topic by your heart. First, in exams also, what is fetal skull? What are the fontanelles? What are the importance of anterior fontanelle and posterior fontanelle? These are the questions asked in our exams. But for the practical point of view, fetal skull is very important. So many questions are asked by the examiners from the fetal skull. What are the bones of the fetal skull? What are the landmarks of fetal skull? What is the importance of anterior fontanelle? What is molding? What is caput succedaneum? These are the questions asked by the examiners in practicals also. So today's topic is very important. So, what we are going to cover under this topic first is the introduction of fetal skull, bones of the fetal skull, sutures and fontanelles, regions and areas of fetal skull, landmark of fetal skull, diameter of fetal skull, molding, and caput succedaneum. First, introduction of the topic. The fetal head is the most difficult part to deliver, whether it comes first or last. It is large in comparison with the true pelvis, and some adaptation between skull and pelvis must take place during labor. Fetal head क्या है? बहुत डेलिकेट पार्ट है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट है डिलीवरी के टाइम पे, चाहे वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन हो. वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है? हेड फर्स्ट आता है. ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड की डिलीवरी क्या होती है? लास्ट होती है. इट इज लार्ज क्या होता है? जो हमारा पेल्विस की कंपैरिजन में क्या होता है, जो हेड का जो साइज है वो क्या होता है? बहुत लार्ज होता है. तो कुछ एडेप्टेशन, कुछ चेंजेस होते हैं मदर के पेल्विस के अंदर भी और फिटल स्कल के अंदर भी, ताकि डिलीवरी का प्रोसेस क्या हो? इजिली कंप्लीट हो सके. एंड अंडरस्टैंडिंग landmarks and measurement of the fetal skull enables to recognize normal presentation and positions to facilitate delivery with the least possible trauma to mother and child. Why we should know the landmarks of the fetal skull? Why should we should know the about the maternal pelvis? Because इससे क्या होता है, जो अगर हम क्या करेंगे उसके लैंडमार्क्स पर कुछ डिसाइड किए गए हैं ताकि जो फिटल हेड की डिलीवरी है वो भी इजीली हो सके, और जो मदर को ट्रॉमा हो वो भी क्या बहुत ही एट लीस्ट ट्रॉमा, मतलब सबसे कम बिना इंजरी के हम क्या करें डिलीवरी को करा सके. कि हमें फिटल स्कल के जो लैंडमार्क्स हैं, प्रेजेंटेशंस है, उसकी पोजीशंस है, इन अकॉर्डिंग टू द मैटरनल पेल्विस हमें पता होनी चाहिए. देन व्हाट आर द बोन्स ऑफ द फिटल स्कल? देयर आर 5 मेन बोन्स इन द फिटल स्कल. occipital bone, 2 parietal bone, 2 frontal bone. Apart from these 5 bones, upper part of temporal bone, which is flat, also forms a small part of the fetal skull. Then what are the 5 main bones of the fetal skull? See, occipital bone. These are the occipital bone. These are the 2 parietal bone and these are the 2 frontal bones. ठीक है, तो fetal head में कैसे होते हैं? 2 frontal bone, 2 parietal bone, 1 occipital bone. साइड में क्या होती है? फ्लैट होती है. ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन. 2 टेम्पोरल बोन्स क्या करते हैं? फिटल स्कल का क्या होती है? छोटा सा पार्ट बनाती है. तो दीज आर द बोन्स ऑफ द फिटल skull. Then first is occipital bone. What is occipital bone? This bones lies at the back of the head and forms the region of occiput. At the center is the occipital protuberance. मतलब ये बोन क्या होती है? हेड के बैक साइड पे लाई करती है और जो रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑसिपुट रीजन. और सेंटर में क्या होता है? इसका एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. Okay, this is for the occipital bone. Occipital bone lies at the back of the head, form the region of the occiput. At the center is the occipital protuberance. एक उभरा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? occipital protuberance. Second is the parietal bone. 2 parietal bone. 2 parietal bones lies on either side of the skull. मतलब parietal bones क्या है? These are the 2 parietal bones. स्कल के क्या है? either sides पे क्या है? यहाँ पे 2 parietal bones है. These are the 2 parietal bones. 2 frontal bones. These are the 2 frontal bones. The 2 frontal bones forms the forehead और sinciput. जो ये वाला पार्ट क्या बनाती है? इसका forehead बनाती है और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? Sinciput भी बोलते हैं.
ठीक है, ये क्या होती है, हमारी फ्रंटल बोन्स होती है. दीज आर द टू टेम्पोरल बोन्स. ओके, दिस इज द डायग्राम. These are the frontal bone, two parietal bone, occipital bone, temporal bone. Okay, here क्या है, सब ऑसिपिट प्रोट्यूबरेंस. जो ऑसिपिट बोन है उसमें क्या होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपिट प्रोट्यूबरेंस. दीज आर द बोन्स ऑफ द फिट स्कल. If we are going to see it from the upper side, ठीक है, अबो से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा. दिस इज द पोजिशन. दिस इज द ऑसिपिटल बोन, टू parietal bone, two frontal bone. Okay, occipital bone, two parietal bone, two frontal bone, and these are the two temporal bones. ये हमें बहुत से ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या होंगे, टेम्पोरल बोन्स विजिबल नहीं होंगी. तो यही डायग्राम शो किया गया है. दिस इज द ऑसिपिटल बोन विद ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, parietal बोन्स. ठीक है, जो parietal बोन्स है उसके ऊपर भी क्या होता है, यहाँ पे दो उभरे हुए पार्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, parietal eminences बोलते हैं. These are the parietal eminences. जो ऊपर की तरफ उभरे हुए पार्ट है इसको बोलते हैं parietal eminences. So these are the parietal eminences. ठीक है, these are the two frontal bones of the fetal head. Then next is the sutures and fontanelles of the fetal skull. First is suture. Sutures of fetal skull. Then what are the suture of fetal skull? What is suture? Membranous space between skull bones of the fetus. मतलब जो हमारी बोन्स है, टू फ्रंटल बोन्स है, टू parietal बोन्स है, ऑसिपिटल बोन्स है, इन सब के बीच में क्या एकदम से क्या होती है, जुड़ी नहीं है, ज्वाइन नहीं है, उन सब के बीच में क्या है, गैप है. मतलब ये मेम्ब्रेनस की तरह से गैप बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुचर्स. ठीक है, मेम्ब्रेनस स्पेस बिटवीन द skull bone of the fetus is known as sutures. These are the sutures. जो ये लाइंस ड्रॉ की गई, these are the suture. ये क्या है, इनके बीच में स्पेस है. Then type of sutures, four type of sutures are present in the fetal skull. fetal skull है, उसके अंदर क्या है, फोर टाइप के sutures है, फोर membranous space है जहां जहां पे. फर्स्ट इज द frontal suture. फ्रंटल suture क्या है, बिटवीन टू फ्रंटल बोन. ये दो फ्रंटल बोन्स है, इन फ्रंटल बोन्स के बीच में ये क्या है, हमारा फ्रंटल suture. Second is the coronal suture between frontal bone and parietal bone. ये frontal bone है, ये parietal bone है, इनके बीच में ये suture क्या है, हमारा coronal suture. This is the coronal suture. Next is sagittal suture. Sagittal suture क्या है, between two parietal bones. ये दो parietal bones है either side से, इसके बीच में जो suture है उसको क्या बोलते हैं हम, sagittal suture. The last one is the lambdoidal suture. Lambdoidal suture क्या होता है, between occipital bone and two parietal bone. This is our lambdoidal suture. Okay, then what are the four type of suture? This is our frontal suture, this is our coronal suture, this is sagittal suture, and this is lambdoid sutures. Okay, sutures are clear. What fontanelles? वाइड गैप इन द suture लाइन इज कॉल्ड fontanelles. जहां पे भी हमारे ये sutures मिल रहे हैं, जहां पे ये मिल रहे हैं, ठीक है, जो मीटिंग पॉइंट है इनका, वहां पे क्या है, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है. वैसे तो क्या है, ऐसे मेम्ब्रेन सा स्पेस है, मेम्ब्रेन स्पेस है, तो जहां पे ये मिल रहे हैं वहां पे क्या है, एक बहुत गैप क्रिएट हो रहा है. उस गैप को क्या बोल रहे हैं, वाइड गैप है. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, fontanelles. जहां पे भी suture मिल रहे हैं, तो एक तो sutures यहाँ मिल रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, पोस्टीरियर साइड पे मिल रहे हैं. जो एंटीरियर साइड के सामने उसको बोलते हैं एंटीरियर fontanelle, और जो पीछे की तरफ बैक साइड पे उसको क्या बोलते हैं, posterior fontanelles. So what are the two type of fontanelles? Two type of fontanelles are present in the fetal skull. First is anterior fontanelle, second one is fontanelle. Now we are going to discuss about anterior fontanelle and posterior fontanelle. Anterior fontanelle. Anterior fontanelle is also known as bragma. Bragma is the second name of anterior fontanelle, and this is the lambda. Posterior fontanelle is known as lambda. Examiner asks what is bragma, what is lambda. ठीक है, bragma is anterior fontanelle, lambda is posterior fontanelle. Okay, it's diamond in shape. इसकी shape क्या होती है, diamond shape की होती है, and this one is ट्रायंगुलर इन शेप. ये मेम्ब्रेन स्पेस कैसा बनता है, यहाँ पे ट्रायंगल टाइप का स्पेस बनता है. इट्स फॉर्म्ड बाय फोर सूचर्स, एज वी ऑल नो, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सजिटल सूचर. ओके, तो ये सब क्या बनाते हैं, कोरोनल सूचर्स आइदर साइड्स पे, फ्रंटल सूचर है, सजिटल सूचर है, फोर सूचर्स क्या बना रहे हैं, हमारा एंटीरियर fontanelle बना रहे हैं.
ठीक है। डायमीटर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ईच। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी क्या होगा इसका 3 सेंटीमीटर है, और ट्रांसवर्स डायमीटर भी क्या है 3 सेंटीमीटर है। नाउ व्हाट इज पोस्टीरियर fontanelle? Posterior fontanelle is also known as lambda. It is triangular in shape and it is formed by the three sutures. Three sutures से बनती है. This one is the sagittal suture, ठीक है, on either side, and lambdoidal suture on either side. Sagittal suture and lambdoidal suture on either side. This is called posterior fontanelles. And what are the diameters? 1.2 and 2 into 1.2. Anterior posterior भी कितना मिलेगा 1.2, और ट्रांसवर्स डायमीटर भी क्या होगा 1.2. जो एंटीरियर fontanelle है, floor is membranous and ossified at 18 month. If fails to ossify at 24 month, it becomes pathological. जो इसका क्या होता है, जो एंटीरियर fontanelle क्या होता है, जो बच्चे जैसे न्यूबॉर्न बेबी बेबी होता है उसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है. जैसे जैसे 18 मंथ का होगा तो क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगा, ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. अगर यहाँ पे ओसिफिकेशन नहीं हो रहा है 24 मंथ के बाद भी, तो क्या होता है, वी हैव टू डायग्नोज इट. इट बिकम्स पैथोलॉजिकल. मे बी some conditions is there, okay, जो हम इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें ओसिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. ठीक है. फ्लोर इज मेम्ब्रेनस बट ओसिफाइड एट टर्म. पोस्टीरियर fontanelle क्या होता है, जब तक बेबी मदर वूम में रहता है तो क्या होता है उसका मेम्ब्रेनस होता है, पर जैसे ही क्या होता है टर्म कंप्लीट होती है 9 मंथ्स कंप्लीट करता है ये, किसमें क्या होता है ओसिफिकेशन कंप्लीट मिलता है. क्योंकि जब आप न्यूबॉर्न बेबी को देखोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सॉफ्ट वो बॉगी मिलेगा, मतलब ऊपर की तरफ उभरा हुआ सा मिलेगा. आप उससे पल्पेशन भी फील कर सकते हो, मतलब आपको पल्स भी दिखती है छोटे बेबी की. हमारा क्या होता है, हार्ड होता है, क्योंकि इसमें ओसिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होता है एंटीरियर fontanelle में. देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीरियर fontanelle? ठीक है. पल्पेशन थ्रू एग्जामिनेशन डिनोट डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ हेड. मतलब जब क्या होता है, हमारी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो रही है और डिलीवरी में क्या होता है फ्लेक्शन, उसमें क्या कर सकते हैं हम, फ्लेक्स इसमें क्या कर सकते हैं हम, पल्पेशन को फिल करके क्या करते हैं कि हेड कितना कंप्लीट फ्लेक्शन है, पार्शली एक्सटेंडेड है, डिफ्लेक्स्ड है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. फैसिलिटेट मोल्डिंग ऑफ द हेड. मोल्डिंग क्या होता है वो हम आगे बताएंगे. मोल्डिंग में क्या होता है, जो बोन्स होती है वो एक दूसरे के पास आ जाती है. ठीक है. इससे क्या होता है, मोल्डिंग क्या होता है, इजिली हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, स्पेस को क्या करेंगे, वो कवर अप कर लेंगे. इट रिप्रेजेंट इंट्राक्रेनियल स्टेटस. अगर क्या होगा, ये बच्चे के अंदर डिप्रेस्ड है, बस मतलब क्या है, उसमें डिहाइड्रेशन है. अगर ये क्या है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ पार्ट एलिवेटेड है, मतलब क्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है, तो इंट्राक्रेनियल टेंशन क्या है, इंक्रीज है. रेयर केसेस में क्या होता है, जब कोई होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन हमें डायग्नोज होती है, ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, यहाँ से हम फ्लूइड कलेक्शन कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, और सीएसएफ को विड्रॉल करके हम उसको भी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, ताकि हम इजिली डायग्नोज कर सके कि कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है. वन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्टीरियर fontanelle? इट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ हेड इन रिलेशन टू मैटरनल पेल्विस. जब हमारा हेड क्या होता है, फुली फ्लेक्स्ड होता है डिलीवरी के टाइम पे, मतलब ये जो ये चिन है उससे क्या होती है, यहाँ पे टच करती है ऐसे. ठीक है. इसमें क्या करता है, जो फिटल हेड की जो पोस्टीरियर fontanelle होती है, जो मैटरनल पेल्विस है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, ऑसिपिटो एंटीरियर है, ऑसिपिटो पोस्टीरियर है. इससे क्या करते हैं, हम पोजीशन ऑफ हेड का पता लगा सकते हैं पोस्टीरियर fontanelle से. ये हम ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्या होगा, हम आगे पढ़ेंगे. दिस ऑल फॉर द एंटीरियर fontanelle एंड पोस्टीरियर fontanelle. Okay. Then what is the importance of anterior fontanelle? This all is the importance of anterior fontanelle. Then next is our regions of the skull. Then what are the regions of the fetal skull? Vertex, sinciput, face, suboccipital region. तो regions कौन कौन से होते हैं? First is vertex. Vertex, it is bounded by the posterior fontanelle, the parietal eminences, anterior fontanelle. 96% of babies born head first and 95% by the vertex presentation. तो vertex क्या होता है? इसमें क्या होगा, पोस्टीरियर fontanelle से लेकर के parietal eminences और anterior fontanelle, जो ये रीजन जो बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. इसमें क्या होंगे, parietal eminences हैं, और जो मोस्टली बेबीज है 95% डिलीवरीज क्या होती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर ही होती है. मतलब हेड ही पहले डिलीवर करता है फुली फ्लेक्स पोजीशन में, और क्या होती है, हमें ये पार्ट ही विजिबल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी. देन व्हाट इज सिंसिपुट? एंटीरियर fontanelle, ठीक है, कोरोनल सुचर और ये ऑर्बिटल रीजन, जो फोरहेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंसिपुट और ब्रो.
एंटीरियर फोंटेनली से लेकर के ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल रिजेस, दीज आर द ऑर्बिटल रिजेस, ओके, दीज आर द ऑर्बिटल रिजेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा सिंसिपुट। देन नेक्स्ट इज फेस। फेस इज फ्रॉम द ऑर्बिटल रिजेस एंड द रूट ऑफ द नोज टू द जंक्शन ऑफ द चिन एंड द नेक। व्हाट इज फेस? फेस क्या करेगा, ऑर्बिटल रेडियस से लेकर के जहां पे ये नेक यहां तक मिल रही है इसको बोलते हैं चिन। चिन और नेक जहां पे मिल रहे हैं ये वाला पार्ट क्या होता है इसका, फेस, ओके। देन सब occipital region, the occiput lies between the foramen and magnum and the posterior frontally. The part below occipital protuberance is known as suboccipital region. जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर जो पोस्टीरियर फ्रंटेनली के पास है, ऑसिपुट में जो ये वाला रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिपुट बोलते हैं। जो ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है उसके नीचे जो ये वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं, सब ओसिपिटल रीजन, ठीक है। ये ऑसिपुट बोन है ना, इसके जो ये वाला रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, सब ओसिपिटल रीजन। Then what are the reasons? Vertex, then sinciput, this is face, okay, and this is subocciput region. These are the four regions of the fetal skull. Then landmarks of fetal head, okay, these are very important. Sinciput, occiput, glabella, anterior fontanelle, vertex, posterior fontanelle, occipital protuberance and mentum. First is our sinciput. This part is called as sinciput. ओके, एंटीरियर फ्रंटेनली से लेकर के जो यहाँ तक ऑर्बिटल रिजिस तक पार्ट है उसको हमने क्या बोला था, तो ये सिंसिपुट, दिस इज द सेकंड लैंडमार्क ऑसिपुट, दिस इज ग्लैबुला, ठीक है, दिस इज ग्लैबुला, एंटीरियर फ्रंटेनली, वर्टेक्स, दिस पार्ट इज वर्टेक्स, पोस्टीरियर फ्रंटेनली, ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड दिस इज मैंटम, चिन। सो क्या बोलते हैं हम, मैंटम। दीज आर द लैंडमार्क ऑफ फिटल स्कल। सिंसिपुट, सिंसिपुट, occiput, glabella, anterior fontanelle, posterior fontanelle, vertex, occipital protuberance, and mentum. These are the landmark of fetal skull. Then what are the diameter of fetal skull? The measurement of the skulls are transverse, anterior, posterior and longitudinal. जो हमने डायमीटर फिटल स्कल के डायमीटर्स है उसके जो मेजरमेंट्स किए वो एंटीरियर पोस्टीरियर भी करेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल भी करेंगे और ट्रांसवर्स भी करेंगे। तो फर्स्ट है ट्रांसवर्स डायमीटर। फर्स्ट इज द बाइपराइटल डायमीटर। बाइपराइटल मतलब बिटवीन टू पराइटल एमिनेंसेस। जैसे मैंने बताया था पराइटल बोन्स है उसके ऊपर क्या होता है, ये उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पराइटल एमिनेंसेस बोलते हैं। जो दो पराइटल एमिनेंस के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वो कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, और उसको हम क्या बोलते हैं, बाइपराइटल डायमीटर। ओके, देन बाइटेम्पोरल डायमीटर। Bitemporal diameter is 8 centimeter. Distance between the anterior inferior ends of the coronal sutures. मतलब जो coronal suture जो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इनके बीच में जो ऐसे डिस्टेंस है वो कितना होता है, 8 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसको ट्रांसवर्सली देखें तो ये कितना होता है हमारा बाइटेम्पोरल डायमीटर बिटवीन टू टेम्पोरल बोन, कहाँ से, जहाँ पे कोरोनल सुचर्स क्या कर रहे हैं, एंड हो रहा है, वहां से यहाँ। बाइटेम्पोरल। सुपर सब पराइटल, सुपर सब पराइटल कितना होता है, 8.5 सेंटीमीटर। एक पराइटल एमिनेंसिस के तो क्या करते हैं, नीचे से लेते हैं, दूसरी पराइटल एमिनेंसिस क्या होता है, ऊपर से, ठीक है। सुपर एंड सब, सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे। एक पराइटल एमिनेंसिस के ऊपर से लेंगे, दूसरी के थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट से क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, और इसकी जो मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है, 8.5 सेंटीमीटर। Super subparietal extend from a point placed below the one parietal eminence to a point placed above the other parietal eminence of the opposite side. Then bimastoid diameter. Bimastoid diameter क्या था, 7.5. These are the jaws mastoid process. Okay, तो ये जो diameter मिलेगा हमें कितना मिलता है, 7.5 centimeter. These all are the transverse diameter. Okay, these transverse diameter. Okay, तो 7.5 centimeter. तो what are the transverse diameter? Biparietal 9.5 centimeter, bitemporal 8 centimeter, super subparietal 8.5 centimeter, bimastoid diameter 7.5 centimeter. Then anterior posterior diameters, ठीक है, anterior posterior diameters. First is the manto vertical, very important, ठीक है। manto vertical, mentum क्या बोला था हमने, ये वाला पार्ट था ना, वर्टेक्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट,
जो हमारा हेड है उसका हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। अब इसी किस में होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ब्रो प्रेजेंटेशन क्या होती है, जब फिटस क्या होता है, ऐसे जो क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले आता है। ठीक है, जो फिटल की इस तरह से हेड क्या है, फुली फ्लैक्स्ड नहीं है, वो एक्सटेंडेड है, तो कौन सी होगी, मेंटो वर्टिकल होगी, ब्रो प्रेजेंटेशन होगी। तो उसमें क्या होता है, हाईएस्ट डायमीटर होता है 40 सेंटीमीटर। सेकेंड इज सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। सब सब मैंटो ब्रैग्मेटिक। सब मैंटो मतलब मैंटम के थोड़ा सा नीचे से, और ब्रैग्मा किसको बोला था हमने, एंटीरियर फोंटेनेली को। दिस इज सब मैंटो ब्रैग्मेटिक। तो ये कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। मैंटो वर्टिकल मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक, ये सबसे बड़ा डायमीटर है। ठीक है, ये दिस वन इज द हाईएस्ट डायमीटर। मैंटम लो, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये 14 सेंटीमीटर। सब मैंटो ब्रैग्मेटिक मैंटम के थोड़ा सा नीचे से, और ब्रैग्मा एंटीरियर फोंटेनेली तक, ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक क्या होता है, सब ओसिपिटो और ब्रैग्मा, ये क्या होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जब हेड की डिलीवरी फर्स्ट होती है, तुम्हें कौन सा डायमीटर दिखता है, सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। और कितना होता है ये, 9.5 सेंटीमीटर। ओसिपिटो फ्रंटल, ऑसिपुट से लेकर के फ्रंटल तक, यहाँ तक ये कितना होता है, 11.5 पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हेड क्या है, फुली फ्लेक्स्ड नहीं है, थोड़ा सा पार्शली एक्सटेंडेड है, डीप फ्लेक्स्ड हेड है। ठीक है, पार्शली एक्सटेंडेड हेड है, तो इसमें क्या होगा, हमें ऑसिपिटो फ्रंटल पर प्रेजेंटेशन अभी भी क्या है, हेड डिलीवरी आ रहा है ना सबसे फर्स्ट, तो 11.5 सेंटीमीटर ही रहेगी। सब ऑसिपिटल फ्रंटल मतलब ऑसिपिट्स के सब ये हमारा ऑसिपिटल रीजन है। सब ऑसिपिटल क्या था, ऑसिपिटल प्रोटुबरेंस के नीचे से इसको बोला था ना सब ऑसिपिटल रीजन। तो सब ऑसिपिटल से लेकर के फ्रंटल तक। ठीक है, ये किस में होता है, ये भी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है, इसका होता है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, दीज आर द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। Here, this is the mantum. This is the highest point. The manto vertical is 14 centimeter. Okay, then this comes in the bro presentation. Okay, submanto ब्रैग्मेटिक। सब मैंटो ब्रैग्मेटिक, सब मैंटो मैंटम के नीचे वाले पार्ट से लेकर के ब्रैग्मा तक, एंटीरियर फोंटानेले तक, ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। ये होता है फेस प्रेजेंटेशन होगी, जब फिटस की क्या होता है, फेस क्या हो रहा है हमें पहले दिखाई दे रहा है डिलीवरी के टाइम पे, उसको बोलते हैं सब मैंटो ब्रैग्मेटिक। ओके, ऑसिपिटो फ्रंटल, दिस इज 11.5। सब ऑसिपिटो फ्रंटल, दिस इज 10 सेंटीमीटर। एंड सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर। जो हमारा हेड है मोस्टली क्या होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक है 9.5 सेंटीमीटर, इसी में क्या होता है, एंगेज होता है। तो डायमीटर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ हेड इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक एंड इट इज 9.5 सेंटीमीटर। दीज आर द anterior posterior diameters of fetal skull. The next is molding. It is alteration of shape of the forthcoming fetal head during its passage through the birth canal. ठीक है, जो हमारा बेबी का हेड है डिलीवर कर रहा है, ठीक है, मेटरनल पेल्विस के अंदर, पेल्विस से बर्थ कैनाल है उसके अंदर से, तो उसके अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसकी जो शेप होती है वो क्या करती है, चेंज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब क्या होता है, कुछ चीज मोल्ड हो गई, मतलब उसमें शेप में कुछ चेंज होकर अकॉर्डिंगली ढल जाना। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारा फिटल हेड का साइज क्या होता है, पेल्विस के कंपैरिजन में क्या होता है, मेटरनल पेल्विस के अकॉर्डिंगली क्या होता है, बहुत बिग साइज होता है, लार्ज होता है। इसलिए क्या होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ अल्टरेशन होता है उसके शेप से, ताकि वो इजिली क्या करे, बर्थ कैनाल से पास आउट कर सके। तो दीज आर द, दिस इज कॉल्ड एज मोल्डिंग। अल्टरेशन in shape is possible because the bones of the vault allow a slight degree of bending and the skull bones are able to override to the sutures. हमने sutures पढ़े थे, sutures क्या थे, membranous lines थी, और fontanelli क्या थे, गैप था उनके बीच में। जो हमारा फिटल हेड है उसके अंदर मोल्डिंग क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैप, इधर भी गैप है। तो इस गैप में क्या करते हैं, जो ये बोन्स के बीच में गैप है, जैसे इस प्रेशर पड़ता है उसका लेबर लेबर प्रोसेस के टाइम पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसके टाइम पे उससे क्या होता है, जो स्कल बोन्स है वो क्या करते हैं, इसको ओवरलैप कर लेते हैं, जो ये गैप है वो क्या करते हैं, दूसरे के पास आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मोल्डिंग होते हैं। और उसकी जो अल्ट्रेशन होती है शेप के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मोल्डिंग ऑफ द फिटल हेड। ठीक है, जो स्यूचर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर जाएंगे, ओवरलैप कर लेंगे इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द ग्रेडिंग ऑफ मोल्डिंग। जो ये मोल्डिंग, इसको भी हमने क्या ग्रेडिंग किया, ग्रेड 1 में तो क्या था, बोन्स आर टचिंग बट नॉट ओवरलैपिंग। जो बोन्स के बीच में स्पेस था वो कवर हो जाएगा, तो स्पेस ही कवर अप करेगा, बोन्स क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड 1 ओवरलैपिंग। देन सेकंड इज ग्रेड 2 ओवरलैपिंग बट इजीली सेपरेटेड, मतलब बोन्स हम दूसरे के ऊपर चले गए गैप को फिल करने के, उसमें थोड़ा प्रेशर ज्यादा हुआ है ऊपर से, तो क्या बोन्स ने क्या किया दूसरे को ओवरलैप कर लिया, पर क्या करेंगे जैसे ही डिलीवरी होगी उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, स्लाइटली क्या होगी, वो अपने आप सेपरेट हो जाएंगी। ग्रेड थर्ड में क्या है, फिक्स्ड ओवरलैपिंग। ग्रेड थर्ड में क्या हो जाएगा, जो हमारी बोन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर गए हैं, वो ओवरलैपिंग क्या हो गई, अभी फिक्स्ड हो गई है, उसको क्या होगा, जैसे इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोल्डिंग, व्हाई मोल्डिंग इज इम्पोर्टेंट during the delivery of the fetal head. Slight molding is beneficial as it enables the head to pass easily through the birth canal. देखो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में क्या कर रही है, स्पेसेस को कवर कर रही है। ग्रेड 2 में भी क्या होता है, ओवरराइड करती है पर इजिली सेपरेट हो जाते हैं, जैसे डिलीवरी होगी कुछ टाइम पास होगा। ठीक है, तो स्लाइट मोल्डिंग क्या होती है, बेनिफिशियल, इससे क्या होता है, फिटल हेड क्या होता है, इजिली हमारी बर्थ कैनाल से पास आउट हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम severe intracranial cranial disturbances in the form of subdural hemorrhage, पर क्या होता है, ओवरलैपिंग हो गई है, टेंशन क्या हो गई है, फ्लूइड जो है हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इंट्राक्रेनियल टेंशन क्या हो गई, अब इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के अंदर ड्यूरा मैटर है उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, सम ड्यूरल हेमरेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक इज कैपुट सक्सीडेनम। व्हाट इज कैपुट सक्सीडेनम, it is swelling of the scalp in the newborn. It's most often brought on by the pressure from the uterus or vaginal wall during a vertex presentation. जब बेबी क्या होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, हेड डिलीवरी फर्स्ट, हेड की क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तो हमारा जो लेबर प्रोसेस के टाइम पे यूट्रस में जो कॉन्ट्रेक्शंस हो रही है, वेजाइनल वॉल्स में भी कॉन्ट्रेक्शंस, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है, जो ये ऐसे पार्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, कई बार क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है, एक स्वेलिंग आ जाती है हेड के ऊपर, और इस स्वेलिंग को क्या बोलते हैं हम, कैपुट सक्सीडेना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से क्या, स्वेलिंग ब्रूशली यूजली अकर ऑन द टॉप ऑफ द स्वेल, जिसके जो स्कैल्प है उसके में क्या मिलेगा, कि हमें बल्जिंग पार्ट मिलेगा, ऐसे उभरा हुआ पार्ट मिलेगा, और उसमें क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन भी मिल सकता है, वेन्स भी हमें इजीली मिल सकती हैं। इट फील्स लाइक अ सॉफ्ट एंड स्पंजी मास, अगर आप उसको टच करोगे तो क्या हमें सॉफ्ट और स्पंजी, स्वेलिंग कैसे होती है, सॉफ्ट होती है, उभरी हुई होती है, वही सॉफ्ट स्पंजी मास की तरह से हमें फील होगी। इट बाय अ prenatal अल्ट्रासाउंड इवन बिफोर लेबर और डिलीवरी बिगिंस, मतलब क्या हो गया है, यूट्रस की जो वॉल से कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है, काफी टाइम से स्टार्ट हो रखी है, वजाइनल वॉल से भी प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम क्या होता है, प्रीनेटल डायग्नोसिस में क्या होता है, डिलीवरी से पहले भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, अगर हमें अल्ट्रासाउंड किया है तो, कि पेशेंट इज फिटल इज हैविंग कैपुट सक्सीडेनम. It has been found as early as 31 week of pregnancy. Very often this is due to the early rupture of membrane or too little amniotic fluid. मतलब जो मदर वूम्ब है उसके अंदर कब होता है, 31 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, हम इसलिए डायग्नोस कर सकते हैं। क्यों क्यों होता है कि अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स क्या होता है, जल्दी हो गया है, फिर जो amniotic फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम है, ओलिगो hydroamnios है. Then first is the treatment. No treatment is needed. The problem most often goes away on its own within a few days. मतलब इसको कैपुट सक्सीडेनम है, ठीक है, उसके बच्चे के फीटल हेड के ऊपर क्या है, एक छोटा सा उभार है, उसको के लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम के बाद क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, अपने आप चली जाती है। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड येलो कलर टू द स्किन इफ ब्रूशिंग इज इन्वॉल्व, मतलब स्वेलिंग के साथ साथ क्या है, वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशंस भी हो गया है, थोड़ी सी हेमरेजेस भी हो गई है, तो इससे क्या होता है, बच्चे की स्किन की येलो येलो हो जाती है, उसको जॉन्डिस के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। दिस इज ऑल फॉर द टॉपिक फिट स्कल. होप you all will understand this topic. Please like and subscribe my YouTube channel if you want to learn from my videos. Thank you.